वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बेंगलुरु में तेजस फाइटर की हालिया परवाज़ और उसी वक्त बेंगलुरु में राजौरी एनकाउंटर में कैप्टन प्रंजल की अलमनाक मौत की आखिरी रसूमात पर वज़ीर-ए-आज़म की सर्द मोहरी ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कौमी त्योहारों को सिपाहियों के साथ मनाना पसंद करते हैं। अक्सर अपनी तकारीर में फ़ौज की बहादुरी पर जोर देते हुए उनसे वालिहाना मोहब्बत का प्रदर्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर सब जानते हैं कि पुलवामा के शुहदा की आखिरी रसूमात को किस तरह से हाईलाइट किया गया था, लेकिन अब उसकी रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म के खुलूस और तरजीहात पर सवाल उठ रहे हैं। ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कैप्टन प्रंजल को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से खराज तहसीन पेश करने में नाकामी उनकी लीडरशिप को दागदार कर रही है। लोगों का कहना है कि पुलवामा के शुहदा की लाशों को सियासी चालों का निशाना बनाया गया और उनकी कुर्बानी के साथ खिलवाड़ किया गया। एक लीडर का किरदार खास तौर पर सानहे के वक्त इजहार ताज़ियत और एकजुहती पर मुश्तमिल होता है। पीएम मोदी खुद को एक कौम परस्त रहनुमा के तौर पर पेश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, तो फिर बेंगलुरु में एक शहीद को खिराज अकीदत पेश करने में उन्हें कौन सी रुकावट दरपेश थी? लोगों का सवाल है कि क्या ये कौम परस्ती महज इंतखाबी हिकमत अमली है? Mr. Modi had come to Bangalore for some reason, and in the meantime, this incident has taken place. And he always projects himself or portrays himself as nationalist or the one who always cares for the army people. But in reality, he is not, or his party is not. They initially assured much about the army people, one rank, one pension. It was not properly implemented. And every Deepavali he used to be there and he used to spend the Deepavali with the army people, he used to say, but it was not a reality as it was fact-checked by some of the agencies. So likewise, Modi ji is the first Prime Minister who uses the military or armed forces or Jawan's name for the purpose of election. If there is no election, there is no value given by the BJP or by the Minister Modi or by anyone for that matter from BJP to the army people. So for election, they want army, they want nationalist issue, and they want something like to ignite the emotions of the people. Okay. And if they're really concerned about the army people, if they're really concerned about nationalism or nationalist ideas, they should have made some effort to protect even Indian soil from the Chinese aggression. Okay. But in reality, Modi's concern to the army or his affection or attachment which he is expressing during his election speech is only limited for the purpose of election. That's all we can say. You see, the government has been taking it very casually because there is no election, especially for the parliament. If it was the case for parliamentary elections, the government would have definitely made it something big, and they would have even produced a movie and propagated that movie and circulated a movie also on that basis. Like Uri, they have projected because they wanted to portray it and encash it in the election. Likewise, any incident which is during the election, they want to record it or to encash it or to propagate it or to project it even through the cinema, through some of the Godi producers or the Godi director. And this is what is happening in India, unfortunately. To sideline the truth, to hide the reality of the issues which the people are facing, which the government has failed to address. It is hiding under the carpet. It is unfortunate that a Prime Minister is not even expressing his condolences or the reason or tribute. It is most unfortunate. It is the greatest insult to the army people and to the army. And Mr. Modi even should not take the name of army at any point of time in the election rally. Really, he has a concern for the army. And he sometimes even wears the army dress, army uniform. But I think it is an insult by the Prime Minister. They should seek an apology. देखिए, ये बहुत दुखी का बात है। देश का नौजवान देश के सीमा में लड़ते लड़ते शहीद हुआ है। वो बॉडी बेंगलुरु में है। पीएम साहब ने आया बेंगलुरु, तो बेंगलुरु आके प्रोग्राम तो अटेंड किया, अच्छी बात है, प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। अब तेजस को उड़ाया पड़ाया जो भी है, इवेंट बना दिया आपने। साइमल्टेनियसली आपको रंजल के जो बॉडी है, जो शहीद हुआ है, उसके घर जाके आने का था इनको, क्यों नहीं गया? अब क्या समझ रहे? हर चीज में इवेंट बना के आप एक इवेंट कंपनी बना के रख दिया। देश का जवान को
किस तरीके के रेस्पेक्ट देने का था वो नहीं दिया। तो इस पे पता चलता है देश का जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगे इस चीजों पे। और एक बात क्या है, आप मैच जाके देखने का समय रहता है, आप हर चीज पे समय नहीं रहता है ना, आपके पास समय नहीं है। देश का जवान जो शहीद हुआ उनके घर पे जाके उनको परिवार को मिलके, वो भी एकदम नौजवान जो किस तरीके के उनके परिवार का हालत क्या होगा उनको सांत्वना बोल सकता था, बट वो छोड़ के ये इवेंट मैनेजमेंट करके गया है। ये बिल्कुल दुखी का बात है। इस तरीके का घटिया काम नहीं करना चाहिए। देखिए पुलवामा में बात मेरा के ना बहुत अपोजिशन पार्टी ने कुछ भी बोल दिया बोलता है, इनका खुद का पार्टी का जो पुलवामा हुआ उस समय में जो वहाँ गवर्नर था सतपाल मलिक, उनका बयान में आपको क्लियर पता है। ये सारे मिलके वो अटैक कैसे हुआ क्या हुआ वो खुल के बोल रहे हैं ना। इनका बीजेपी का एक नेता को दम नहीं है ये गलत बोल रहा है करके बोलने का। मीन्स कहीं ना कहीं दाल में हाँ। तो उसको लेके चुनाव में 19 में उसी को चुनाव का मुद्दा बनाया, किस तरीके का ड्रामा किया, इवेंट बनाया, लोगों को किस तरीके से विश्वासघात करने का काम किया, ये सारे याद रखा है जनता। अभी 6 महीने बचा है, कितना इवेंट मैनेजमेंट करना, कितना आपको डायरेक्शन प्रोड्यूसर जो बनना बनो, 24 को इनको उखाड़ के फेंकने का काम इस देश का युवा, इस देश का महिला, इस देश का किसान, इस देश का गरीब, इस देश का सभी वर्ग सभी समाज का लोग इनको ये मेरे निक्के में सरकार को इनको उखाड़ के फेंकने का काम जनता करेंगे। माय फर्स्ट जो हमारे वतन के लिए लड़ते हुए हुतात्मा हुए हैं कैप्टन प्रांजल, उनके आत्म को अंतिम नमन बोलना चाहती हूँ। प्रांजल अमर रहे, सारा वतन सारा भारत कैप्टन प्रांजल के बलिदान को याद रखेगा। साथ ही साथ मुझे अफसोस हो रहा है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने हर भाषण में देशभक्ति के नारे लगाते हैं, देशभक्ति के बारे में बात करते हैं। हम सबको मालूम है, पता है कि पुलवामा जब अटैक हुआ था उस टाइम पे माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बिहेवियर कैसा था एंड हाउ ही बिहेव्ड वी नो वेरी वेल। ही केप्ट, उन्होंने हमारे जो हुतात्म योद्धा थे जो पुलवामा में हुतात्म हुए थे, उन लोगों के बॉडीज को, उन लोगों के शरीर को 2-3 दिन रख के उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने का और मतयाचन करने का काम किए थे। उस मुद्दे को लेकर मतयाचन करने का काम किए थे। बैंगलोर आए हैं, खुद बैंगलोर में हैं, तेजस फ्लायर जेट का उड़ान करने के लिए। बैंगलोर में ही कैप्टन प्रांजल का घर भी है, बैंगलोर के जिगनी में, बहुत दूर नहीं है, करीब ही है। तो इफ यू रियली हैड दैट पैट्रियोटिज्म, वतन के बारे में, जो हमारे वतन के लिए लड़ रहे हैं उनके बारे में अगर असली में गौरव होता तो उन्होंने प्रांजल के अंतिम नमन में पार्टिसिपेट होते। मोर देन सिक्योरिटी वो रीजन दे सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पस वगैरह वगैरह, वॉट एवर इट माइट बी, डिफेंस कम फर्स्ट और सोल्जर्स कम फर्स्ट, ये हम याद रखना है। बट वॉट एवर इट माइट बी, जो हुतात्म हुए थे योद्धा, उनके नाम में चुनाव जीतने के लिए क्या क्या काम किया, कितने भाषण दिया नरेंद्र मोदी जी ने, वो हम सबको पता है। सो व्हेनेवर ही नीड ही विल यूज आवर सोल्जर्स नेम, आवर इंडियन डिफेंस नेम, आर्मी नेम। बट जब चुनाव नहीं रहता है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिए होगे। अगर ये क्या 2 महीने में चुनाव होता ना, डेफिनेटली सारा दिन वो हुतात्मा योद्धा के घर में रहते।